او میرے خدا، چھوڑ دیے، مان گئے نا جھوٹ بولتے تھے، اب چھوڑ اچھا اب چھوڑ، تو وہ جو کہہ رہے ہیں، جو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اخلاق سے گری ہوئی ہے یا نارمل ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں جواب ہے وہ الزامی جواب ہے، الزامی جواب کے اعتبار سے بالکل ٹھیک اسٹیٹمنٹ الزامی جواب کے اعتبار سے بالکل ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے وہ۔ ہے۔ جو جس طرح سے اسٹیٹمنٹ حضرت ہمارے اچھا امام اگر نے الزامی نہ ہو تو، اگر الزامی نہ ہو تو پھر غلط ہے۔ میں بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا اگر وہ الزامی نہ ہو، اگر الزامی نہ ہو فتح بھائی، اگر الزامی نہ ہو تو پھر یار آپ نے نا اپنے لفظوں میں، اگر آپ دو سکر بندوں بھائی نے نے، لفظوں کے ٹریپ کرنا ہے، آپ دونوں بندوں نے اگر لفظوں کا سکر بھائی ٹریپ نے کرنا ہے۔ الزامی طور پر نہ کہا ہو تو پھر یہ ولگیرٹی ہے۔ چلیں چلیں اسی پہ پبلک کے سامنے پیش کر دیں، یہ پہلے بھی اسی طرح جو اویس صاحب، اگر یہ الزامی طور پر سکر بھائی نے نہیں کہا تو عامر پھر بھائی یہ تھوڑی آواز ولگیرٹی ہے۔ سلو آ رہی، میں پوچھ لینا تھوڑی آواز سلو آ رہی، میں پوچھ لینا گندے ہوئے تھے، اس میں بھی اسی طرح گندے ہوں گے۔ ایک منٹ گندا، میں تجھے بتاتا ہوں اویس، اگر یہ الزامی نہ ہوا جواب تو پھر ولگیرٹی ہوگی، یہ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا اگر یہ الزامی نہ ہوا، اگر یہ جواب الزامی نہ ہوا تو پھر یہ ولگیرٹی ہوگی؟ اچھا بھائی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے جس اصول پہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی والدہ سے دودھ لیتے تھے، جس طرح باقی تمام لوگ بھی لیتے ہیں، سیکھر صاحب بھی لیتے ہیں، میں بھی ان میں شامل تھا، عامر نذیر صاحب بھی ہوں گے، باقی بھی ہوں گے۔ ہر ایک بچہ جو اپنی والدہ کا دودھ پی کے بڑا ہو، تو میں نے غلط بات نہیں کی نا، بس کہہ رہے نہیں کی۔ دودھ لینے کے لیے کوئی اور تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیکر صاحب نے بات پھر غلط نہیں کی۔ سیکھر صاحب نے جو بات کی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی حاشیہ رائی کریں۔ جو انہوں نے حاشیہ رائی کی ہے، اس حاشیہ رائی کے ساتھ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، جیسے انہوں نے پیش کیا ہے، جیسے انہوں نے تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، وہ غلط ہے۔ بھائی کیسے اگر تو پہلے بات کی ہے میرے خدایا، کانٹیکس سے آپ کے کلام بتاتا ہے کلام کہ وہ کس تحت بات ہو رہی ہے۔ مہد میں کلام کرنا، مہد میں دودھ پینا، یہ تو تمام لوگوں کی کا طریق ہے۔ اویس پھر پوچھ۔ حضرت عیسیٰ نے مہد میں کلام نہیں کیا۔ بات کرنا تو سب کا معمول نہیں ہے نا، بات یہ کرتے ہیں نا، فقیوں فریسیوں کے ساتھ کلام کیا ان کے عقیدے کے مطابق۔ دیکھیں بات کرنا تو ہر بندے کا نہیں ہے ماں کے گود میں نا۔ گود میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی گود میں یہودیوں کے ساتھ کلام کرتے نہیں، اب یہ جیسے تروڑ مروڑ کے حوالے کے اندر، میری بات سنیں، جیسے تروڑ مروڑ کے حوالے کے اندر حاشیہ آرائی کی ہے سیکر صاحب نے، مطلب انہوں نے اپنی طرف سے باتیں ایڈ کی ہیں، حاشیہ آرائی کی ہے، انہوں نے بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو پیش کیا ہے، جیسے انہوں نے پیش کیا وہ غلط پیش کیا، انہوں نے وہ بات انہوں نے بالکل غلط کی ہے، ایسے ہی۔ کانٹیکس پورا پیش کریں گے، اس میں وہ بات بڑی صراحت کے ساتھ جو اب تک کیا وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اویس بھائی سوال صحیح کر لو بھائی جان۔ سوال یہ ہے کلام میں بڑی کہ اگر سکر بھائی نے الزامی رنگ میں کہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ میرے دیکھو قرآن کریم کی آنکھ ایک میں نہ ملاؤ، منٹ ہولڈ کروانا، ایک منٹ ہولڈ کروا، عامر ان کو بھائی روکے، ان سے فتح بھائی ایک منٹ ہولڈ کرنا، ان سے ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر سیکر بھائی نے الزامی طور پر کہا ہے تو پھر تو الزامی طور پر تو کسی کو کہا جا سکتا ہے مخالف کو، لیکن اگر الزامی طور پر نہیں کہا تو پھر یہ بے حیائی کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ ولگیرٹی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ صحیح ہے بات کہ غلط ہے؟ سیکر صاحب کی بات کریں، کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہے۔ فتح اسلام صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ الزامی طور پر کسی کو کہا گیا ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو الزامی طور پر نہیں کہا گیا تو پھر یہ ولگیرٹی ہے، یہ بات درست ہے؟ بلکہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ آپ کو بعض باتیں ہوتی ہیں شیخ کے کلام، میں نے قرآن کریم کی مثال دی ہے۔ ایک عام جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے، کسی کو زنیم کہا جائے، سیکر صاحب کو کوئی زنیم کہہ دے، یا کسی اور آپ کو کوئی حرام کا کہہ دے، اس سے کیا نتیجہ نکلے؟ یار سوال نیز صاحب سوال اتنا سا پوچھا ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اگر سیکر بھائی نے الزامی رنگ میں کہا ہے تو کوئی حرج نہیں، میں نے خود سنا ہے۔ اب بات ختم کرتے ہیں نا یار، کس کو رگڑا دیتے رہنا ہے 2 دن،
इसको खत्म करें। अगर सीकर भाई ने ये आपको इल्जामी रंग में कहा है कि मुबारक अहमद अपनी माँ का दूध पीते हुए बात कर रहा था अपने भाइयों से इस तरह करके, अगर तो इल्जामी रंग में कहा तो आपका कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इल्जामी रंग में नहीं कहा तो फिर सीकर भाई ने वल्गैरिटी का मुजाहरा किया है। मैं एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे यार, जरीला साहब आए हैं, मैं ना उनसे पूछता हूँ वो क्या कहते हैं। ओह बारी कर लो। जरीला यार साहब बात को खत्म करें। ले जी यार अवैध मेरा भाई, सर दर्द होना शुरू हो गया यार, मेरा तो सर कसम आ गई, मेरा सर दर्द होना शुरू ऐसा हो गया करते हैं यार। अवैध भी ऐसा करो, पैनाडोल मिलती है पाकिस्तान, पैनाडोल मिलती है 1000 रुपए का। भाई आप दोनों बात को ट्विस्ट करके, आमिर नजीर भाई आप बड़े हैं और सीकर भाई आप यार बात को आप लोग ट्विस्ट करते हैं, आप सीधी बात सामने रखें ताकि मैं बस सीधी बात करूं आपसे। कितनी साफ बात पूछ रहे हैं, कितनी, मेरी बात सुने, कितनी सीधी बात पूछ रहे हैं। जो उन्होंने फरमाया है कि ये इल्जामी रंग में तो बात कही जा सकती है कि बच्चा माँ का पिस्तान मुंह में डालकर वो दूध पी रहा है और पीछे बातें कर रहा है, इल्जामी रंग में तो कहा जा सकता है। अगर सीकर भाई ने इल्जामी रंग में कहा है तो उनको कबूल है, अगर ये इल्जामी रंग नहीं है तो फिर हम इनकी मजम्मत करें, सीकर भाई की बात खत्म करें यार। और मैं माफी हाँ, ओके एक मिनट, पिछले साल जब मैं रमजान च गया ना, यार एक मिनट, रमजान जरीला पिछले साल गया साहब तो 1000 रुपए का पत्ता मिलता सी पैनाडोल का, मैं क्या उत्थों पाकिस्तान उनके ना मिलता है। अच्छा एक मिनट है, मैं ना जलीला साहब नीचे आए हैं ताकि मैं जलीला साहब आए हैं ताकि मैं आप एक काम करें, आप अपनी स्टेटमेंट सीकर भाई दोबारा दोहरा दें ताकि वो नीचे लिख दें कि ये बात ठीक है या गलत है या क्या है। मैं दोहरा देता हूँ। हाँ, अगर कोई बंदा ये कहे, सीकर भाई ने जिस तरह कहा कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मुबारक अहमद जो माँ के पेट में भी बातें करता रहा है, वो जब पैदा होने के बाद माँ की गोद में था तब भी वो अपने भाइयों से बात भी कर रहा था और माँ का दूध भी पी रहा था, माँ का पिस्तान मुंह में डाला हुआ था और उधर से पिस्तान छोड़ के पीछे मुंह करके भाइयों से मुखातब होकर बात करके फिर मुंह में पिस्तान डाल लेता। कि अगर ये सीकर भाई ने बात इल्जामी रंग में कही है तो इसकी क्या हैसियत, जिस तरह उन्होंने कहा है, क्या नाम है उनका, फतेह साहब ने, कि फिर तो ठीक है। अगर ये इल्जामी रंग में नहीं है तो क्या ये वल्गैरिटी है जो सीकर भाई ने बात की? भाई इतना पूछना है। हाँ मैं बताता हूँ, अब ये और मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, अगर वो कहते हैं वल्गैरिटी है तो मैं माफी। चलो माफी वाली पस्तान मुंह में डालने वाली बात और पस्तान मुंह में डालने वाली बात, ये आपकी डालनी जरूरी है ये बात? हाँ, एक तरीका है ना बात करने का, देखे ना, एक अंदाज है कि भाई अगर कोई बंदा ये कहे आपको तो आपको क्या अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, यही बात पूछी उन्होंने। क्या ये बुरा लगेगा? उनसे कहलवाएं यार जरी साहब, आप इसका जवाब जरी साहब से ये कहलवाएं, जरी साहब से कहलवाएं यार। मैं जरी साहब को, हाँ ऊपर तो मैं बुला लूं, उन्होंने बाद में आके आपकी किताबें खोलनी है, आपने कहना शातमियत होगी तो मैं बाद में सामने बैठकर अगर टाइम रख के किताबें खोले तो किताबें भी कबूल है। उसको कहो टाइम रख के 5-5 मिनट लगा के जो किताब उसने खोलनी है खोल ले आके। हाँ, पहले जवाब दे। 5 मिनट में, फिर 5 मिनट मैं भी किताबें खोलूंगा, फिर उसने सुनना, भागना नहीं है, खोले किताबें। चले गए, अब वो चले जा चुके, वो चले गए यार। किताबों की गल कर लो, चला गया जी। कौन कहता है किताबें ना खोलो भाईजान? हम तो कहते हैं इधर आ दिलबर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर। खोलो हमारे सामने किताबें। एक मिनट हरम को मैं कहता हूँ होस्ट। हाँ, एक दफा खोली थी किताबें इमरान खान ने मलक तलत की ब्राड पर, फतावा रिजविया पढ़ा था। मेरी कॉल कर देने, लाइव कर देने, डिस्कनेक्ट। मैं पूछता हूँ नहीं, लाइव करा देते मेरी कॉल यार, ये पता नहीं, इस पे मुझे दुख है। वो आपकी कॉल लाइव चला रहे थे यार, ये तो बड़े बददियानत लोग हैं यार। वैसे यार अच्छा यार, उन पे उन्होंने मुझसे माफी मांग ली, तो ना चलाते, वो बात खत्म हो गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी। ये जो भी हवाला पेश कर रहे हैं ये जो सीकर भाई, उन्हें सुनना ही नहीं है। आप उठे, आप जरा प्लीज जरा मुझे बताइएगा यार। वो जरा अभी सोए उठे हैं तो वो कहते हैं मैं कॉल बैक करता हूँ। अच्छा, मैं तो सोया उठ के मुनाजरा करने पहुंच गया था, इनको सोए उठे क्या चाहिए, चमन बना चाहिए होता है। चलें इसको खत्म करें, काफी हो गई है। मेरा हमने सिर्फ हो गया, कसम खुदा की यार। अवैस भाई आज के लिए काफी है, अब हम अपनी ब्रॉड पे आ रहे हैं, आप भी बेशक वहीं पे आ जाओ थोड़ी देर बाद। ठीक है जी, ठीक है, कर दें इसको, आप ऐड कर दें तो फिर हम अपनी ब्रॉड पे सारे भाई जो है ना सबको मौका। इतना सिर्फ नमूना ही लोगों के सामने पेश करना था कि ये वो लोग हैं कि इनसे कोई भी सीधा सवाल पूछो, इतना डरा दिया है हमने, अल्लाह की कसम है, इतने डरे हुए हैं
किसी बात का सीधा जवाब देते ही नहीं है। अभी आपके सामने ये पिछले 5 मिनट का वाकया है। उसने कहा कि अगर इल्जामी तौर पर कहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि उनको डर है कि ऐसी कोई बात हमारे काबर ने कही है, जो बार बार सीकर भाई कह रहे हैं ना, ऐसी कोई बात हमारे गले पड़ने वाली है, डर है उनको। तो वो पहले ही अपने आगे ना वो ढाल आगे करके तो कह रहे हैं अगर तो इल्जामी रंग में कहा है तो कोई बात नहीं है, अगर तो इल्जामी ना, तो हमने कहा चलो यही कबूल है, अगर इल्जामी रंग में कहा है फिर कबूल है आपको, लेकिन अगर इल्जामी रंग में नहीं कहा फिर तो कबूल नहीं होना चाहिए ना भाई। इसकी जिद यही है ना भाईजान कि अगर इल्जामी रंग में नहीं कहा तो फिर गलत है, फिर वल्गैरिटी है, फिर एक औरत की हया को आपने तार तार कर दिया, एक औरत की शर्म को आपने नंगा कर दिया। आपको शर्म कर दीजिए ऐसी बात करते हो किसी खातून के बारे में, ऐसे कहना चाहिए ना भाईजान कि भाई इल्जामी रंग में तकनीक है। मैं कह तो रहा हूँ कि ऐसे, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे। उनसे क्यों नहीं कहलवाते? यही बात जो आप कह रहे हैं उनको कहते हुए डर लगता है जी। तो मैं कह रहा हूँ वो तो उनकी, बल्कि उनके मिर्जा साहब की तो बीवी हैं, वो वालदा हैं, हाँ। क्या हैं जो भी हैं, तो वो उनको तो चाहिए वो, हाँ, ये इसके ऊपर तो उनको स्टांस लेना चाहिए सख्त। आपका तो वो साहब है मुदई सुस्त गवाह चुस्त। आमिर भाई, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बुरा बुरा। हाँ। आमिर भाई चलते हैं अपनी लाइफ पर जाने से पहले सिर्फ मैं एक छोटी सी बात कर दूं। अवैस भाई जरा मेरी ना एक बात सुनो जरा और से। अवैस भाई, हमने बिल्कुल वन साइडेड गेम नहीं खेली, आप इस बात के गवाह हो कि हमने पूरा मौका दिया है, जो चाहे आए और जवाब दे, ऐसा ही है। अब अवैस भाई, जब ये हम होस्ट टू होस्ट एंड करेंगे, आप इस कॉन्वर्सेशन को लेकर उनकी लाइफ पर, अपनी लाइफ पर आप हिस्सा नहीं बनेंगे अनलेस और अनटिल हम में से एक बंदा मौजूद हो। ठीक है, ये आप पर इखलाकी फर्ज भी है, और ये आपके साथ हमने एक बात रख दी, जिसने बात करनी है हम आ जाएंगे, हमारे सामने हो। हाँ, ये आप अगर किसी ब्रॉड पर बैठकर सुन रहे हो और वो वहां पर हुटिंग कर रहे हो और नीचे या दाएं बाएं या फॉर यू पे मुसलमान भाई सुनेंगे तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि आपने तो सिर्फ सुनना ही है ना, हमने तो सुनने के अलावा भी कुछ करना है, हमने तो बोलना भी है ना, आपने सिर्फ सुनना है। तो ऐसा ना हो कि आप अकेले सुने और किसी को फिर गुस्सा लगे, फिर वो आपसे नाराज हो। इसकी बजाय उनको कहें ये बात करनी है, उनके सामने बैठ के करो। इतनी देर वो आपको पुकारते रहे, आप नहीं आए, अब जब आपने बात करनी है उनके सामने करो। हवालों वाली बात मैंने तो परसों भी कहा था ना, कोई मजमून किसी पर बात करनी है, किसी हवाले पर बात करनी है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपसे ना करें, आपके साथ किसी भाई को बिठा के करें, मोस्ट वेलकम। आप इसी तरह सिर्फ मीडिएट करें, उसको सिर्फ रवा रखें बात को, हम कोई ज्यादती नहीं करने वाले, कोई पहल नहीं करने वाले। अब उनको जो डर है ना इस बात का, देखें बातों बातों में आपकी बातों से समझ आ रहा है कि वो गालियां दे रहे हैं। उनको डर इस बात का है कि ये जो गालियां हम फोन पे दे रहे हैं ना, जब हम सामने देंगे नतीजे में हमारे मिर्जा साहब को गालियां पड़ेंगी, इसलिए वो कह रहे हैं नहीं नहीं वैस भाई होना ये है कि फिर हमारे नबी साहब को गालियां पड़ेंगी। वो क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों डर है कि गालियां पड़ेंगी? क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज का पता है कि भाई जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इसके बदले में तो हमारे मिर्जा साहब को गालियां पड़नी है, इसलिए वो भाग रहे हैं। अब बात ये है कि इधर बात गाली तो नहीं देनी चाहिए, और ये बात तो यकीनन क्योंकि वन साइडेड था, आपकी साइड से तो कोई निकली नहीं है, इधर से बल्कि पहल भी मैं समझता हूँ उधर से ही हुई है, निकाली भी उन्होंने बहन की गाली है और निकाली भी आप। ओ अच्छा, बहन की गाली निकाली फतेह साहब ने, ओ माशाल्लाह। अगर वो हमारे सामने यहाँ देते तो हमने लौटानी थी ना, फिर इन्होंने कहना तो ओहो दूसरों के काबरीन की तौहीन हो गई है, ये है मसला। इसलिए ये कहते हैं दूसरों के काबरीन की ये तौहीन करते हैं, क्योंकि ये पहल करने से बाज नहीं आते, हम वो बात लौटा देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मिर्जा साहब का इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीना अला। नहीं वो, लेकिन अब एक मिनट, इसको अब मुझे नहीं पता इसको गाली कहते हैं कि नहीं कहते, मैं तो इसको गाली कहता हूँ कि उन्हें अपनी भैन का रिश्ता देता है, तो ये वाली मैं इसको गाली समझता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहो ही गल अगर मैं लुटावां फिर पिछा ते कित्थे जानी, लोकां कहना ओ काबरीन दी तौहीन होगी, काबरीन दी तौहीन होगी। ये है बात भाईजान, आज ये रिकॉर्ड रख लें सबूत के आमिर भाई ठहर जाओ, आमिर भाई ठहर जाओ। ए दूसरा सवाल भी ऐड करा देने। अवैस, आपने ये भी पूछना है एमडीओ से कि जो फतेह साहब ने कहा कि इन्होंने भैन का रिश्ता देना है, क्या ये गाली है कि नहीं, ये भी पूछ लेना। ले जी, अब इसको करते हैं, हम अपनी लाइफ पे जा रहे हैं। अवैस भाई आप भी आ जाओ वहां पे बेशक, और हमारी कमिटमेंट हो गई, बात क्लियर हो गई। इस टॉपिक पे जब गुफ्तगू होगी, क्योंकि स्टार्ट हमने किया है,
ہماری موجودگی میں ہوگی, اس کے علاوہ آپ نے ان کو الگ سے انٹرٹین نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے موقع دیا سب کو, ہم نے سب کو موقع دیا, ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. ٹھیک ہو گیا اویس بھائی؟ چلیں آ جائے, اب ہم چلتے ہیں, ڈسکنیکٹ کر لیں تاکہ باقی بھائی بھی کالز ڈال رہے ہیں تو ان کو موقع دیتے. تو آ جائے جی, آج کا سیشن یہیں تک روکتے ہیں, آپ سانسیں بھریں کے بارے پھر کرتے ہیں. لے جی, اللہ اکبر. لو جی بھائیوں کو اٹھاتے ہیں. صدقے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے زاہد بھائی؟ ہوئے ہوئے نہیں ریکویسٹ ٹھہرو. حال وہی ہے جڑا اپنا تمہیں پتہ ہی ہے, بس ٹھیک ہے. گڈ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بٹ صاحب, کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جیسی کیا بن کے نہ ماریے بیلٹا کری ادھر دی دڑکی تے لگے. نہیں سیکر بھائی, ایک ہفتے سے آپ اس کو بٹھا کے سوال جواب اس سے کر رہے ہو, تو آج موقع تھا نا بھائی, آج کرنے تھے نا سوال. آج ہمت کرتے, کہتے کہ بھائی ہم جواب دیتے ہیں, ہمارے سوال ہیں, ہم سوال کریں گے. ہمت کر کے آتے. عامر بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ سلیم میر آتا, ککڑ جری اللہ آتا, وہ جو عطا المنان کا لونڈا ہے وہ آتا. آئے کیوں نہیں آج؟ آج تو آنا چاہیے تھا نا. اویس کی براڑ پر چڑھ کے کرتے سوال. ایک سوال کا جواب تھا وہ دے دیتے, اس کے بعد پھر اپنا سوال کرتے, ہمت کرتے, ٹانگوں پہ وزن ڈالتے. Hey bro, how are you? الحمدللہ برو. ہائی برو. Hey bro, what's up? بھائی میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ پہلا سیشن تھا نا اپنا اویس بھائی کے ساتھ, تو وہاں پہ وہ آن دی ریکارڈ آ جاتا, وہ نام لے کر کے بول دیتے ہیں نا, کیونکہ یہ بڑے سفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے سویلائز لوگ ہیں, تو یہ نام لے کے بتا دیتے ہیں کہ فتح قادیانی نے عامر بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ لفظ کہے ہیں, تاکہ آن دی ریکارڈ آ جاتا کہ یہ گالی باز آ. بالکل بالکل, یہ تو اس کی گواہی موجود کر دی ہے, اور اس کا دوبارہ سے بیان بھی لے لیں گے اس کے اوپر. بالکل لے لیں. ہاں جی, بلکہ ابھی اویس بھائی اگر سن رہے ہیں تو آگے کم از کم یہ بیان ضرور دیں تاکہ یہ ریکارڈ پہ آئے. یہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے, تو ان کا اصل ان کی اوقات یہ ہے کہ آپ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے گالیاں دے رہے ہو, تو سامنے آ کے بات کرنے کی ہمت نہیں, چلے ہی دے رہے ہو کہ میں نے 3 سوال رکھے ہیں اس کا جواب دے. اوقات یہی ہے یوسفی بھائی, اوقات یہی ہے, لیکن وہ اصل کوڈ اپنی فیک آئی ڈی سے نکالتا ہے. اصل کوڈ نکلتی فیک آئی ڈی سے. ادھر اوقات یہی ہے, نکال کے نا بہن کی گالی. میرا خیال ہے ویس بھی اگر آپ سن رہے ہیں تو آ کے کم از کم یہ جو ہے نا یہ ریکارڈ کروائیں یہاں پہ کہ اس نے یہ لفظ کہیں عامر بھائی کے لیے, ویس کو بلا لو, اور اس کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ, اور کرارا جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تے سیکر بھائی ماجد بھائی نو پوچھ لینا سی, عامر بھائی دے بڑے پکے دوست نے. ماجد بھائی, عامر بھائی موجود ہو؟ ماجد بھائی دا نہیں پتا؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی گستاخی ہے؟ بھلے مجھے اس کا سوال کا جواب دینا. عامر بھائی ماجد بھائی دا پتا جی کہ نہیں؟ یار ایک منٹ ٹھہرے ہو یار, ایک منٹ. ابو بکر بھائی ایک منٹ رک دے جاؤ. ابو بکر بھائی ایڈی سپیڈ نہ پھڑیا کرو, پہلے دسو تو صحیح کی کرن لگے. پھر ہو سکتا ہے بریکنگ نیوز بھی کہ ماجد بھائی دا کہ تانوں نہیں پتا عامر بھائی تو سن لو. اچھا دلت بھائی نہیں اپنے ماجد بھائی نکلے جے ہیں. ہاں جی ہاں جی, تسی کتھے رہ گئے ہو؟ وہ ماجد بھائی نکل آئے جے. ماجد نام دا ہاں جی, نہیں کہندے مینوں گڈو پتہ نہیں نہ ماجد ہے کہ نہیں آندا. میں مشہور استاد سر کل کلابے بتا رہے سن, او علی اکبر تے تلت بھائی تے نال ایک بندہ اور سی کوئی, تے گلاں ہون لگ پیاں کتھے کتھے کام کردے رہے نے. تے انہاں نے کہا اچھا تسی اوتھے کام کردے سو؟ انہاں نے کہا ہاں بالکل. پھر تو ساڈی ملاقات بھی ہوئی ہوئے گی. آندا ہے تہاڈا نام کی سی؟ ماجد میرا نام سی, اس نام تو میں مشہور سی. اچھا تسی ماجد صاحب ہو, پھر تو تہاڈے نال ملاقات ہوئی ہے میری.
ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਤਲਤ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਛੁਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਕਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਲਤ ਮਲਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਮਰ ਭਈਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। चेक करके आया जाहिद भाई, मैं चेक करके ਦੇਖਣਾ हाँ, ਜਰਾ ये जरा पैरा दियो जरा। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। हाँ पैरा देना जरा सारे ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾਓ ਇੱਥੇ। ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ? जी अमर भाई की कह रहे हो? वो बोल रहे थे भाई, बता रहे थे। अमर भाई की कह रहे हो? ਅਵੈਸ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਮਰਦਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਵੈਸ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਰਦਈਆਂ। हाँ मैं ਉਹ ਅਵੈਸ ਦੀ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। आफर भाई चले गए ने। स्ट्रेट वे में कहा है, स्ट्रेट वे में कि आमिर नजीर भाई आप इन चीजों का जवाब क्यों नहीं देते? जी मैंने सुना था, उन्होंने कहा था मैं बताता हूँ, तो उसके बाद ही मेरी कॉल आ गई, तो इसीलिए मैंने पूछा कि उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि नहीं। तो बात ये कि वो तो जरी बात, उनसे हम जवाब ले लेंगे, कोई बात नहीं। बल्कि वो आ गए होकर वो सीधे जो भी आप पूछ रहे हैं, जो भी हवाला है, मैंने तो उन्हें कहा कि भाई आप जवाब दें। अभी करें सवाल, अभी पूछे, मैं देता हूँ जवाब। कौन सा कह रहे हैं कि जवाब? नहीं जनाब सवाल कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जब हमने इल्जामी जवाब दिए हुए हैं तो आपको वो गुस्ताखी लगती है। तो जब ये सीरत सुनाई का वो पूछते हैं तो आप लोग जो पूछते हैं उनको गालियां निकालते हैं या कहते हैं इसकी ऐसी की तैसी, इसने ये कह दिया वो कह दिया। तो मैं कहता हूँ कि जिसने लिखा है उसने ठीक ही लिखा होगा उसके इल्जामी जवाबात में कि, लेकिन आप जो पूछते हैं उसको गालियां निकालते हैं, आप एक्सप्लेन नहीं करते कि भाई उन्होंने। जहाँ तक गालियों का बार बार कह रहे हैं ना, गालियां तो अभी हमने सब ने देखा कि गालियां हमें देकर गया आपका भाई, जबकि हमने तो कोई गाली नहीं दी है। अच्छा अमनदीप भाई एक बात सही बताना, जब उन्होंने फोन पे मेरी बात सुने, आपकी बात मैंने अगर 1 मिनट पूरा सुनी है, आप 5 सेकंड के बाद जो आपकी बर्दाश्त जवाब दे गई, ऐसी क्या वजह है कि आप दूसरे को हक नहीं देना चाहते कि जिस तरह मैंने 1 मिनट बात की है दूसरा भी कोई 30-40 सेकंड तो बोल ले? ये क्या वजह है? आमिर भाई, आमिर भाई एक मिनट, मैं जवाब। आमिर भाई मेरी बात सुनिए। हर बंदे में, आमिर भाई आपके पीछे शोर बहुत ज़्यादा है। आमिर भाई हर बंदे के अंदर ना, देखें आप जब गुफ्तगू करते हैं ना, मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो कभी लहजा सख्त, कभी हाई, कभी डाउन होता है। आप अपनी तरफ से नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी स्पेस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि कोई शख्स अगर कोई बात कर रहा है तो वो खुल के बयान करे। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कह दिया एक आधी बात उन्होंने रोक दिया, आपकी बात दुरुस्त है कि रोकना नहीं चाहिए, आपकी बात पूरी सुननी चाहिए, लेकिन कभी कभार हमें प्यार से भी, प्यारे लहजे से भी बात करनी चाहिए। तो नासिर भाई की बात जो है, नासिर भाई मौका देते हैं आमिर भाई को ताकि आपको रिप्लाई कर दें, आप फिर अपनी पूरी बात रखें, उसके बाद कोई मसला नहीं। हाँ मैंने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से कह दिया है, लेकिन बात वही है। अगर मैं धीमे लहजे से भी कहूँ कि भाईजान बात बारी बारी करनी चाहिए, पहल नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती जुल्म में पहल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अगला बंदा बार बार आपको कर रहा है तो लामहल्ला इंसान हूँ, प्याला और सागर नहीं हूँ मैं, क्यों गर्दिश अयाम से घबरा ना जाए दिल। कहीं ना कहीं इंसान जाके अपना जवाब दे ही देता है। तो बात यह है कि वो जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वाला हवाला है उस पर हमने गालियाँ तो नहीं दी हैं भाईजान, हमने तो जवाब दिया, 3 दफ़ा मैंने जवाब दिया है। अगर वो जवाब पसंद नहीं है तो आप अभी दोबारा करें, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। मैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का वो सीरत सनाई का हवाला 3 दफ़ा मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। आप समझते हैं कि मैंने उसका जवाब देने की बजाय गालियाँ दी हैं? या तो वो वीडियो पेश कर दें या फिर अभी सवाल करें, देखते हैं अभी मैं कितनी गालियाँ देता हूँ आपके सवाल के जवाब में। जी आप गलत समझ गए हैं जनाब, आपने बात, इसलिए मैं बोला था अंदर, आप भी उधर ही बैठे हुए थे। आपने ठीक बताना है कि जब उसने वीडियो कॉल पे ये बात कही तो सीकर साहब का क्या रवैया था, इसकी ऐसी की तैसी हो, इसको मैं अभी बताता हूँ क्या रवैया था। ये बात सख्त रवैया था भाई, नासिर भाई सख्त रवैया था, सख्त रवैया था आपकी बात में, कोई जवाब देने के बजाय कि ये बात हो रही थी। आमिर साहब पता नहीं क्या समझ रहे थे, मैं ये बात कहना चाह रहा था। जब उन्होंने पूछा है आप कह रहे हैं हम जवाब देते हैं, लेकिन सीकर भाई कह रहे थे कि नासिर भाई मैं जवाब, नासिर भाई असल में जो डिबेटर्स होते हैं ना, देखिए डिबेटर्स का अब हम, मैं देता हूँ जवाब, मुझे मौका दे देते, मुझे मौका दे, मैं देता हूँ जवाब। जी आप दें, आप बोलें। बात यह है नासिर साहब कि कई सवाल ऐसे होते हैं, उन सवालों के अंदर सख्त अल्फाज होते हैं
बाज़ मुक़द्दस शख्सियात का उनमें ज़िक्र होता है और उनके अंदर ऐसे सख्त अल्फाज होते हैं कि उनको बार बार दोहराने से तौहीन मुतसव्वर होती है भाईजान। ये बात जब हम दर्जनों दफ़ा इसको जवाब दे चुके तो इस एतराज़ को बार बार दोहराना और उसके अंदर उम्मुल मोमिनीन का क्योंकि ज़िक्र आता है, तो जब आपका भाई अभी माइक के ऊपर ऊंची आवाज़ में सवाल करना चाह रहा था ना, हमारी नज़र में वो सवाल नहीं करना चाह रहा, वो उम्मुल मोमिनीन के बारे में वो अल्फाज दोहराना चाह रहा है जो कि अल्फाज मौलाना सनाउल अमृतसरी के साबित भी नहीं है। एक बात, जिस सेंस में उन्होंने इसको इल्ज़ामी जवाब के तौर पर दिया है उसकी तफसील भी वहाँ पर नहीं है, लेकिन हमने उसका जवाब उसके बावजूद दिया है। पर वो ये चाहते हैं कि इस सवाल को बार बार दोहराते जाएं और उम्मुल मोमिनीन के बारे में ये अल्फाज लोगों के कानों में डालते जाएं ताकि तौहीन हो उम्मुल मोमिनीन। इसलिए सीकर भाई चीखे हैं कि खबरदार इसको बार बार दोहराया तो बात हो गई, एक दफ़ा जवाब दे दिया, 2 दफ़ा जवाब दे दिया। इस इल्ज़ाम को, इन लफ्ज़ों को बार बार दोहराना भी ये गाली के ज़ुमरे में आता है, तौहीन के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे सख्त अल्फाज हैं और मुजमल अल्फाज हैं। वो मौलाना सनाउल अमृतसरी की अपनी तहरीर नहीं है, लेकिन हमने उसके ऊपर एक सवाल काउंटर रखा था कि भाई अगर यही सवाल आपके सामने कोई करे जो आप हमें कर रहे हैं बार बार, अगर यही सवाल कोई आपसे करे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब का भी दावा है कि मुझे 40 मर्दों की कुव्वत अता की गई या ताकत अता की गई, अगर कोई बंदा ईसाइयों का वो आपसे सवाल करे, आप भी तो मिर्ज़ा साहब के पैरोकार हैं ना, और वो आपको सवाल करके कहे कि भाई मिर्ज़ा साहब में 40 मर्दों की ताकत थी तो आपकी उम्मुल मोमिनीन वो 40 मर्दों की ताकत कैसे बर्दाश्त करती थी नुसरत जहाँ बेगम साहिबा, आप उस ईसाई को क्या जवाब दोगे? हमें तो ज़रा समझाओ ना, अगर हमारी गलती है तो हम इसकी सलाह करें, थोड़ा सा आप भी तो पूछ के बता दें उनसे। जी मैं बताता हूँ। अब रणधीर भाई हम भी वही जवाब देंगे जो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने दिया था। आप समझते हैं कि उन्होंने इल्ज़ामी जवाब दिया था? एक सेकंड होल्ड रखें, मैं ज़रा बिजी, एक सेकंड। अच्छा नासिर साहब, आपका ये ख्याल है कि आप वही जवाब देंगे जो मौलाना सनाउल अमृतसरी के हवाले से अब्दुल मजीद चौधरी साहब ने लिखा है, आप वही जवाब देंगे? मैं ये कहता हूँ कि जो अब्दुल मजीद चौधरी साहब ने दिया था, आप ये समझते हैं कि उन्होंने इल्ज़ामी जवाब दिया था? पहली तो बात यह है कि वहाँ पर तो तफसील ही नहीं है कि ये मौलाना सनाउल अमृतसरी के ही अल्फाज हैं, और अगर उनके अल्फाज हैं तो इसके आगे पीछे के अल्फाज क्या हैं और उस पूरे वाक़े की तफसील क्या है। हम तो ये कहते हैं कि उस वाक़े की वहाँ पर तफसील मौजूद नहीं है, एक दूसरा बंदा रवायत करने वाला है, मुजमल बात बयान की गई है, इसके बारे में हम यकीन से कह नहीं सकते कि मौलाना सनाउल अमृतसरी ने यही जवाब दिया और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ सवाल हुआ और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ जवाब हो। हम उसको मुस्तनद बात नहीं मानते। लेकिन यकीन नहीं है आपको, अगर हो सकता है उन्होंने भी कहा हो, यकीनी बात है ना, यकीनी बात है। तो अगर उन्होंने कहा तो आप समझते हैं कि उन्होंने इल्ज़ामी जवाब दिया है? अगर के साथ तो सवाल ही ना होता भाईजान, अगर आप हो भाई कह रहे हैं कि अगर, हाँ नासिर साहब, अगर हो ना इस तरह का सवाल, इल्ज़ामी जवाब के हम कायल हैं, इल्ज़ामी जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इल्ज़ामी जवाब के साथ जिन एहतियातों की ज़रूरत है वो कल हमारे कौन से भाई वहाँ मिर्ज़ा साहब की तहरीर पढ़ के सुना रहे थे कि इल्ज़ामी जवाब देने से पहले ये एहतियात ज़रूरी है कि एक तो वो मुखालिफ को तस्लीम हो, उसकी किताबों से हो, और उसके अंदर कोई तौहीन अमेज़ बात अपने पास से ऐड ना की जाए। इंतहाई एहतियात के साथ वो सवाल इल्ज़ामी तौर पर आगे रखा जा सकता है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसकी क्योंकि तफसील नहीं है और मुजमल सी बात है तो ये खूबसूरत दिखाई नहीं देती। हम तो इसको भाई आप मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ मुजमल सी है, इसमें थोड़ा सा शुबा 5% या 1% कह लें 100 में से है कि उन्होंने कहा हो ना। मान लीजिए कि इससे मिलता जुलता उन्होंने कोई जवाब दिया है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, बिल्कुल, इसीलिए इसको मैं मफरूज़े के तौर पर मानकर ही आपसे पूछ रहा हूं कि आप किन लफ्ज़ों से जवाब देंगे अगर आपके बारे में कोई सवाल पूछे कि आपकी उम्मुल मोमिनीन ने वो 40 मर्दों की ताकत कैसे बर्दाश्त की। मिर्ज़ा साहब का दावा है कि मुझ में भी 40 मर्दों की इल्ज़ामी जवाब दूंगा, जारी बात है। भाई आपको थोड़ा सा ये लगता है कि हमें उम्महातुल मोमिनीन की उस तरह इज्जत नहीं है, हमें भी वैसी है जैसे आपको है, तो हम भी वैसे जवाब देंगे जैसे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने दिया होगा, अगर दिया तो। यानी अगर कोई बंदा मिर्ज़ा साहब के बारे में और नुसरत जहाँ बेगम साहिबा के बारे में पूछेगा
तो आप उसको वही लफ्जों से जवाब देंगे जो लफ्ज वहां पर अब्दुल मजीद चौधरी साहब ने लिखे हुए हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये ईसाई को कहा, उन्हीं लफ्जों से जवाब देंगे। इसका मतलब है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने गलत कहा तो उधर भाई सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का तो साबित ही नहीं है ना कि उन्होंने ये बात कही। साबित नहीं है, लेकिन हो भी तो सकता है ना। अगर जो बात कह रहे हैं मुजमिल सी बात है, वो सकने वाली जो बात होती है ना, उसको हम यकीन से तो नहीं ना कह सकते कि ये बात है भाईजान। भाई मैंने 99% में से 1% रहता है कि अगर उन्होंने कहा भाई अगर इस तरह की कोई बात उन्होंने कही भी है तो मुमकिन है इसके साथ कोई तफसील हो, तब तो आपने ऐसे तो पढ़ी नहीं क्या होगा। वो कि नहीं पढ़ी है? वो तो किसी ने रवायत बयान किया भाईजान, 3-4 बंदे हैं वहाँ पर रवायतें बयान करने वाले, पता नहीं अगर 3-4 बंदे हैं, तो उसका मतलब है फिर सच ही होगा। एक बंदा तो झूठ बोल सकता है, अगर 3-4 बंदे हैं, फिर तो सच ही अच्छा होगा। आपने इसको सच मानना है तो आप मानते रहें, मुझे बता दें कि आप ईसाई को। देखिए मेरी बात सुने अमर भाई, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई खातुल मोमिन के मुतालिक ऐसे बात किए ना, या ऐसे बात करे जैसे आपको गुस्सा लगता है। वो तो वैसे खत्म ही हमको होगी ना लगता है। बात। उम्महातुल मोमिनीन के बारे में तो हम पूछ ही नहीं रहे, हम जी, तो जी। आपकी बात पूछ रहे हैं जो आपकी उम्मुल मोमिनीन है, नुसरत जहां हमारी बेगम भी साहिबा। वही है। आपको क्यों लगता है कि हमारी वो नहीं है? जब आप लोग ये कह देते हैं ना कि जो आपकी है वो भी आप हमारी नहीं मानते? है। नुसरत जहां बेगम साहिबा को नहीं आप उम्मुल मोमिनीन कहते? कहते हैं भाई, उनको भी कहते हैं। तो पहले मैं तो उनको उनके कहते बारे हैं। में पूछ रहा हूँ, मैं तो उनके बारे में मैं पूछ रहा कहता हूँ कि भाई। पहले हम उनको कहते हैं भाई। आप यार पहले की मैं बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसको आप बाद में मानते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। उनके बारे में अगर कोई बंदा आपसे सवाल करे, आप क्या जवाब देंगे? ये मैं हाँ पूछ रहा देते हैं भाई, यही कहते हैं बकवास करते हैं, करके चला जाता है। बस ये थोड़ी गालियाँ, आप थोड़ी गालियाँ निकालते हैं। क्या कहते हैं आपको? हम क्या कहते हैं? हूँ। ये गाली कौन सी? ये तो एक सवाल नहीं है। अब तो नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा भाई। पहले भी तो आप फिर करते हैं, फिर आपको पता नहीं, है, अगर खुद को किसी पता ने है। अगर किसी ने ये सवाल आपसे किया, किसी क्रिश्चियन ने, तो आप उसको ये कह देंगे कि गाली निकाल के चला गया है। अच्छा, तो अगर किसी क्रिश्चियन ने हजरत आयशा को मतलब ये सवाल किया था तो आप नहीं समझते कि उसने गाली निकाली? ओ भाई हजरत आयशा की तो बात खत्म हो गई है। नहीं, उनके रहनुमा! मुतल्लिक़ चले मैं आपको पूछता हूँ, अगर उनके मुतल्लिक़ किसी ने सवाल किया था तो आपको लगा था कि गाली? हाँ, वो बात मैं कह चुका हूँ। अब मुझे बताएं कि आप क्या जवाब कह देंगे? चुके हैं भाई? मैं कह रहा हूँ कि आपको लगा था कि वो गाली है। कौन सी गाली है? अगर उनके मुतल्लिक़ किसी क्रिश्चियन ने ऐसा सवाल किया तो आपको लगा कि वो गाली है? ऑफ कोर्स। हाँ, तो फिर हमें भी लगेगा भाई। हमें तो आप क्या जवाब देंगे? गाली सुनकर क्या जवाब देंगे? यार जैसे सनाउल्लाह आपने जवाब दिया ना,